sustainable development, skill and educational development, infrastructure development, and most important of all, cultural heritage. In this, youth has the most major role to play, as said by our PM Shri Narendra Modi ji. Youth power is the agent of change and the beneficiaries of change. But when we look at the reality, we see the youth of our country today is distracted. Unemployment and income inequalities are at sky high. Also, when given a chance, many of the Indians move out of the country for job purposes. Here arises a question as it is what to be done. So, here we as individuals need to realize that it's not just about government policies but about our individual responsibilities as well to make a future ready India and a better India. We need to focus on our responsibility as change starts from I, that is self. And it is very evident that our actions of today are going to transform in the future of India. One more important point I would like to highlight today is, in the process of economic development, we must not forget about our environment, as good life comes not only from wealth but good air, good water and nutritious food. I reiterate, good life comes not only from wealth but good clean air, clean water and nutritious food. So a sustainable Bharat is our responsibility. Not only our responsibility but a legacy we will leave behind for our future generations to come. We don't want them to be cursing us, right? So we want our India to be future ready as well as having a good environment. We as Indians might bicker on a lot of small issues because we have our fair share of differences, but I truly believe we have the capacity, knowledge and the most important of all, which is the foundation of cultural differences or the foundation of cultural that no other nation can boast of. It is our strength and we should look it up as like that. We have the capacity, knowledge and the resources to make India future ready. So let's all of us come together, realize our responsibilities towards a better nation and make our country a 30 million economy by 2047. I pray and hope that we make it happen. Please let's make it happen. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत ही सुंदर आपका भाषण आस्था कुमारी, इनके लिए एक बार जोरदार कर्तव्य होना चाहिए। अब हमारे बीच आ रही है अगला प्रतिभागी आर्या तिवारी। आर्या तिवारी, नो ठीक। फिर अगले हैं सविदा खातून। सविदा खातून नहीं है। सिमरन कुमारी, फादर नेम संजय कुमार साहब, इनके लिए एक बार जोरदार कर्तव्य होना चाहिए। सिमरन कुमारी सर, सिमरन कुमारी, फादर नेम संजय कुमार, फ्रंट पेज सर। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम सिमरन कुमारी है और मैं यहाँ आप सभी के समक्ष एक भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका विषय है विकसित भारत 2047।
मैं अपने भाषण का शुभारंभ करने से पहले कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, सोने की चिड़िया जैसा हो, जहां मातृभाषा का सम्मान हो, एबीसी के आगे क ख ग का ना अपमान हो, जहां कोई बच्चा कुपोषण से ना मरे, जहां जात पात पर लोग ना बटे, जहां सबके दिल में राम और शिया हो, जहां हर बच्चा गुरु गोविंद का जवान बने, हर के लब में कबीर के दोहे हो, हर धर्म एक समान हो, मेरा भारत महान हो। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु आजादी के बाद भी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां थी। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बस 18% था, जिसमें महिलाएं तो बहुत ही ज्यादा पीछे थी। परंतु आज मुझे गर्व है यह कहते हुए कि हमारे भारत में 74% लोग शिक्षित हैं और वो समय दूर नहीं जब हम पूरे 100% लोग शिक्षित होंगे। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारा लक्ष्य 2047 का ही क्यों है, क्योंकि 2047 को हमारा राष्ट्र पूरे 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए। अच्छा, विकसित भारत से हम क्या समझते हैं, क्या आम है, क्या है विकसित भारत? विकसित भारत ऐसा भारत है जहां हर घर में लोग शिक्षित हो, जहां विश्वसनीय बिजली हो, जहां सबको रोजगार मिले, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने और साथ ही साथ सबको स्वास्थ्य सेवा मिले। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सब बैठकर यहाँ सुन रहे हैं भाषण, पर हम करेंगे क्या? तो इसके लिए हमें अपना योगदान देना होगा। कैसे? हमें लगभग प्रति व्यक्ति आय को 5 गुना बढ़ाना होगा, तभी 2047 तक हमारा अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर का बनेगा। इसके बाद कोई भी विकसित राष्ट्र बिना तकनीकी में डेवलप हुए नहीं हो सकता। तो हमें अनुसंधान क्षेत्रों में भी देखना पड़ेगा कि वहाँ भी विकास हो। हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र तकनीकों में विकास कर रहा है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, मुझे भी पता है, आदित्य L1 भी हुआ है, परंतु क्या ये सक्षम है उसे विकसित बनाने के लिए? नहीं, अभी भी बहुत जर्नी बाकी है, बहुत सफर बाकी है। हमारे देश में केवल 0.67% ही खर्च किया जाता है तकनीकी विभाग में, परंतु अगर हमें विकसित देश बनाना है तो लगभग पूरे अर्थव्यवस्था का 2% हमें तकनीकी विभाग में लगाना होगा। और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। प्रयास और कोशिश से मुझे एक कविता याद आती है हरिवंश राय बच्चन जी की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम देख सकते हैं कि हम कहीं पर अभी टॉप में नहीं है, कहीं प्रथम में नहीं है, परंतु हमारे पास सबसे जो बड़ा मूल्यवान चीज है वो है हमारा जनसंख्या। 150 करोड़ आबादी वाला राष्ट्र जहां पे सबसे ज्यादा युवाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपने भाषणों में युवाओं को बहुत ज्यादा फोकस किया है। क्यों किया है? क्योंकि यही युवाएं आगे चलकर हमारे राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनेंगे। आगे चलकर ही क्या, हम अभी भी भागीदारी दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में। तो इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हमें गांव के भी विकास को थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज भी गांव में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा अभाव है, वहां पर उतने ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक बात और आप सभी को बताना चाहूंगी, युवा खासकर युवाओं को, कि हम सर एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज से हम अपने देश के विकास के लिए पूरा अग्रसर रहेंगे और साथ ही उसके विकास के लिए अपना योगदान देंगे। अर्थात मैं अपने एक और बात कि हाँ, अगर मैं छोड़कर हम
हम बनकर सोचे तो हो सकता है राष्ट्र जल्दी विकास कर जाए। तो हम सब एक भारतवासी की तरह सोचते हैं, ना कि मैं की तरह। और एक बात मुझे बताना था कि लक्ष्य और सपना में क्या अंतर होता है। हमें भारत के विकसित बनाने के लक्ष्य की तरह देखना चाहिए, सपने की नहीं तरह नहीं, क्योंकि सपने तो नींद में देखे जाते हैं और लक्ष्य खुली आंखों से। तो मैं अंत में अब कुछ पंक्तियों के साथ अपना जो भाषण है उसे विराम देना चाहूंगी। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपनी मंजिल प्रत्यक्ष लिए, अपनी मंजिल प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ देंगे सारी जंजीरें, हम तोड़ देंगे सारी जंजीरें, हम बदल देंगे सारी तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, ये नवयुग है, नव भारत है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपका अभिभाषण रहा। अब हमारे बीच आएंगे रेखा कुमारी। रेखा कुमारी, फादर नेम अजय कुमार महतो। काफी देर से काफी उत्सुक है। बेस्ट ऑफ लक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रेखा कुमारी है और मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ। और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस हिंदी डिपार्टमेंट में मुझे इस विषय के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगणों को मेरा स्वागत करना और यहाँ उपस्थित मेरे सभी क्लासमेट, मेरे सहपाठियों को मेरा बहुत सारा प्यार। विकसित भारत 2047 का क्या थीम है? इसका विषय यही है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जब 2047 में अब हमारा देश 100वां शताब्दी पूरा करेगा, तब हम सभी को मतलब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। इसीलिए भारत सरकार इस योजना का शुभारंभ किया है। और ये विकसित भारत 2047 की युवाओं की आवाज है, जिसके तहत युवाओं को एक मंच प्रदान की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को मतलब इस योजना के दृष्टिकोण में अपने सलाह पूछे जाएंगे कि कैसे 2047 तक कैसे क्या क्या बदलाव करेंगे कि 2047 तक एक कंप्लीटली डेवलप कंट्री होगी। मैं भी एक सपना देखती हूँ और मैं भी ये चाहती हूँ कि 2047 तक हम भी एक इंडिया को डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहती हूँ, फुलफिल डेवलप्ड कंट्री। लेकिन आज भी समाज में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अभी भी भारत को विकासशील देश कहा जाता है। जैसे शिक्षा में भी बोलते हैं कि शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, लेकिन आज भी कंप्लीटली कहीं भी सुधार नहीं हुआ है। आज भी मतलब शिक्षा के प्रसार में कम से कम सभी शिक्षकों को एकजुट होकर मतलब शिक्षा के प्रसार में जोर देना पड़ेगा। एकजुट होकर ही शिक्षा के प्रसार को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक ही वो माध्यम है, वो ताकत है जिसका अगर सही से मार्गदर्शन ना मिले तो किसी का भी बचपन भटक सकता है। और जिस राष्ट्र का बचपन भटक जाए उस राष्ट्र का भविष्य भी भटक सकता है। एक जिला को चलाने के लिए कायस की जरूरत पड़ता है कि नहीं? एक उसी तरह के स्टेट को चलाने के लिए मंत्री का जरूरत पड़ता है। तो मेरे विचार से भारत को विकसित बनाने के लिए कम से कम भारत को सब नागरिक को साक्षर होना जरूरी है। मेरे विचार से यही है कि फुलफिल जब भारत एक डेवलप कंट्री होगी, उसके लिए भारत का हर नागरिक को साक्षर होना पड़ेगा। और यही कि अभी भी असमानता, गरीबी कौन जो देखी है, जिसने गरीबी झेली है, जिसके साथ असमानता हुआ है, वो समझ सकता कि गरीबी क्या है। मैंने खुद इसको बहुत अच्छे से रियलाइज किया है। आज भी असमानता में मैं एक कुछ शब्दों में कहना चाहूंगी यही कि दिल्ली सजी है एकदम दुल्हन की तरह। दिल्ली सजी है एकदम दुल्हन की तरह और आज भी गांव की गलियां सजी है एकदम विधवा मूर्ति की तरह। सजी है कि नहीं? एकदम वैसे ही है। शहरों में ऑटोमेटिकली पानी बिजली है, लेकिन गांव में एक चापाकल भी अगर खराब हो जाता है ना तो उसको रिपेयर होने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इस समस्या को आज भी सेम वैसा ही है। सिर्फ बोलते हैं कि बेरोजगारी में सुधार होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन आज भी किसी में सुधार नहीं हुआ। आज भी पढ़े लिखे बहुत सारे युवा घर में बैठे हैं, बहुत सारे युवा। तो हम चाहते हैं कि उसको सब, ये बहुत ही बड़ी योजना है, एक दिन में नहीं होगी और किसी एक से नहीं होगी, लेकिन हम सब अगर चाहें तो एक दिन जरूर होगा।
जब टारगेट बड़ा है, मिशन बड़ा है, तो शक्ति भी ज़्यादा बड़ी होगी। इसीलिए कम से कम ये हम खुद चाहते हैं कि हम सब मिलकर जितने भी अनुशासन के नियम हैं उनको पालन करें, संविधान के नियम का पालन करें, और तभी जाकर हम कह सकते हैं कि 2047 तक भारत एक सुरक्षित होगा, सुंदर देश होगा और विकास भारत कहलाएगा। तो भारत में बहुत सारी ऐसा है कि शहरों और गांव में जो बहुत सारी कमियां हैं, इस समानता को मैंने बहुत ही अच्छे से देखा और मैंने गरीबी और असमानता तो मैं देख ही रही हूँ अपने गांव में, अपने शहरों में भी। मुझे बहुत ही लगा, तो मैं बहुत कोशिश करूंगी इस मिशन में एकदम जुड़ने की और इसको एकदम साक्षर करने की। आप मेरे लिए, मेरे नज़र में जितने भी, सबके नज़र में, भारत के हर नागरिक में, हर स्टूडेंट के आंखों में ये सपना होना चाहिए, ना कि सिर्फ मोदी जी के आंखों में। सबकी आंखों में ये सपना होना चाहिए, सबके बातों में ये दम होना चाहिए कि नहीं, इस मिशन को सक्सेस करना है। इसीलिए 2047 का मतलब उसी दिन को चुना, क्योंकि उस दिन हमारा देश 100 शताब्दी पूरा करेगा। अगर 100 शताब्दी पूरा होने के बाद भी अगर इंडिया डेवलप नहीं कर पाती है तो इंडिया के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा सिचुएशन हो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी पीढ़ी की युवा पीढ़ी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ये मिशन सबके दिमाग में होना चाहिए, सबके दिलों में होना चाहिए। इस मिशन को पूरा करने के लिए सबको एक होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि आज हम स्पीच देकर चले गए और कल बस खत्म। जब कल हम आ गए हैं स्पीच देने, बस बोल दिए तो बस खत्म। दिमाग में रखना, इसे यहीं तक नहीं छोड़ देना कि आज हम बोल दिए घर जाके भूल गए। इसको रखना है दिमाग में और इसको साक्षर करने में एकदम अच्छे से तैयार होना है कि ऐसा नहीं यहाँ बोले और घर जाते ही सब खत्म। जीतने के लिए नहीं कि मुझे फर्स्ट रैंक में आना है, सेकंड में आना है, थर्ड में आना है, या फिर किसी भी तरह मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए तो हम वहाँ जाएंगे। सिर्फ पैसा मिलने से डेवलप नहीं होगा। भाषा, जो कि भाषा ऐसा नहीं कि भाषा में भी होना चाहिए, जो आज झारखंड के ही नहीं, भारत और झारखंड दोनों की हिंदी एक राजभाषा है कि नहीं। बहुत ही दुख की बात है। हम तो बहुत बार देखे हैं कि राष्ट्रभाषा को लेकर आज इंग्लिश में लोग ज्यादा, हम इंग्लिश अच्छा लैंग्वेज है, सर्च के लिए, जानने के लिए अच्छा इंग्लिश है, लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मान होना चाहिए। दूसरे देशों में जाकर देखिए, वहाँ कोई डॉक्टर लेकर पढ़ाई करने जाता है, सबसे पहले उसका नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं कि दूसरे लैंग्वेज में बात करें। इस भाषा का उपयोग सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सबको, दो वकीलों के बीच में इंग्लिश में क्या हुआ कुछ पता नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज, स्कूल में, हॉस्पिटलों में अगर हिंदी में बात नहीं होता तो सच में ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। हम तो बोल रहे हैं तो इंग्लिश जान के सर्च के लिए अच्छा है, लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मान वो भी भारत को विकसित करने के लिए बहुत ही अच्छा ही है कि हम भाषा को भी ना भूलें और उसको देखते हुए मतलब इस टॉपिक को ना भूलें। मैं भी एकदम बहुत ही दिल से चाहती हूँ कि मैं 2047 तक भारत को एक फुलफिल कंप्लीट डेवलप कंट्री देखना चाहती हूँ। मैं उस दिन बहुत ही प्राउड फील करूँगी कि जिस दिन अगर ये सपना साकार हुआ तो बहुत ही अच्छा लगे, सिर्फ मुझे नहीं आपको भी। इसी वाणी के साथ मैं बहुत सुंदर देखा आप हमारे का। अब हमारे बीच आ रही है जिन्नत अनवर। जिन्नत अनवर है, इनके लिए जोरदार करते हैं धन्यवाद के लिए। जिन्नत हेलो, स्टार्ट करें। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीबों का पीने में। तो मैं बाबरी या राम मंदिर का पक्ष नहीं, मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आदरणीय विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी सहपाठियों को मेरा सादर नमस्कार एवं शुभ प्रभात। आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ विकसित भारत बताने के लिए। मेरा यह फर्ज बनता है एक युवा होने के नाते कि एक युवा विकसित भारत के बारे में क्या सोचता है, मैं वो बताऊंगी। विकसित भारत वो भारत
जिसमें छुआछूत, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। वो भारत जहाँ भाई बहन सब आपस में मिलजुल के रहे। भारत, विकसित भारत वो भारत जहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि भारत में एकता लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर एकता रहेगी हमारे भारत में तो हम लोग एक राष्ट्र को पिरो के रखेंगे, क्योंकि एकता में ही बल है। अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो किसी भी विरोधी राष्ट्र के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत का बाल विवाह आके कर सके। विकसित भारत करने के लिए सबसे पहले हमारे देश के बेटों का विकसित होना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का बेटा आज अपने बूढ़े माँ बाप को जाके चौखट पे छोड़ दे रहा है। हमारे देश का युवा आज लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। हमारे देश का युवा आज इस कदर है। अगर हमें भारत को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें अपनी महिलाओं को विकसित करना होगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा 7 पीढ़ी पढ़ता है, लेकिन एक पुरुष पढ़ता है तो उसका पढ़ाई सिर्फ उसी तक सीमित है, क्योंकि पुरुषों को बाहर का भी काम रहता है और महिलाएं घर में रहकर अपने बच्चों का लालन पोषण करती है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। ये मानसिकता है जो अंतर होता है लड़का और लड़की में, ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता हमारे घर से ही जन्म लेती है। जैसे हमारी माँ, बेटा तुम ये काम मत करो, तुम लड़की हो, बेटी वो काम मत करो, तुम लड़की हो। ये सब मानसिकता हमारे घर से ही आती है। तो इन सब मानसिकताओं को हमें रोकना होगा। जहाँ पर एक कम्युनिटी में ले लीजिए, एक कम्युनिटी में एक लड़का और लड़की रहेगा, वहाँ पर अगर विचार की बात आए तो वहाँ पर एक लड़कों का विचार लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़कों का विचार लड़कियों की तुलना में काफी अच्छा होता है। अगर हमें भारत को विकसित करना है तो सबसे पहले लड़का लड़की में जो ये भेदभाव जो बहुत चल रहा प्रचलित हो रहा है, इसे कम करना होगा। विकसित भारत एक ऐसा भारत जहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी तरह से होगी। हमें अगर भारत को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें बेरोजगारी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि साहब आज बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि एक पढ़ा लिखा इंसान आज फांसी के फंदे में लटकने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते उसकी आयु निकल जा रही है, लेकिन बेचारा किसी कारण से उसका नौकरी नहीं हो पा रहा, जिस वजह से वह लटक जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगी, जो जनरल है ST SC में जो ये समानताएं दी गई है कि जनरल को 3 साल, ST SC को 5 साल या 6 साल की छूट मिलती है, इसको थोड़ा आप कम कर दीजिए। क्योंकि विकसित भारत पे आज मैं अपने सैनिकों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। महोदय, आज हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बच्चे के चित्रों को देख के बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं अपने बच्चे का आधा शरीर कैसे ले लूं? साहब आज इन मानवाधिकार के कारण इन आतंकियों को ना तो उन्हें हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की आंगन की विधवा यह चीख चीख के कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू। जब से हम लोगों ने देखा एक जोशीला अभिभाषण हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। इनके लिए एक बार जोरदार करतब होना चाहिए। फिर मेरे प्यारे भारत की युवा, अब एक नया दौर देखने को मिल रहा है। विनोद बिहारी महतो कल्याण विश्वविद्यालय में हमारे ऐसे युवा दिख रहे हैं जो लगता है कि हाँ कुछ होगा। उड़ते रहे हम अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते चले, ये जिंदगी की राह है डगमगा सकते नहीं, बस हमें कुछ करना है, कुछ सीखना है, काम ऐसा कर जाना है। विनोद बिहारी महतो कल्याण विश्वविद्यालय की बैनर तले हमें देश को आगे लेके चले जाना है और इसी तरह से अपने भारत को विकसित भारत के रूप में बदलना है। बहुत कुछ है, अभी बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा चीज है, बताएंगे बाद में, देख लेते हैं। एक चीज और, संख्या आप लोग की 34 है, 34 या 35 और अभी तक 14वां 15वां सीरियल अभी चल रहा है। हाँ? अभी 20-22 और है, तो संभावना है कि 5-6 भी बच सकता है ना। क्या हम लोग बाकी पार्टिसिपेंट कल हम लोग करें? क्योंकि सारे स्टूडेंट इसी कॉलेज से हैं, इसी आपको कैंपस में आना ही है। और फिर चूंकि दूर दराज से कुछ बच्चियां लोग आई हुई हैं, उनको जाने में दिक्कत है ना। तो बाकी लोग अगर कल फिर हम लोग उसी तरह